ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਆਲ? ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਏ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਵਾਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਸੈਕੰਡ ਵਾਸ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਾਸ ਪੋਲੀਗਨ ਲਾਅ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਤੇ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਫ ਚ ਦੱਸਾਂ ਬਈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ A ਔਰ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ B। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਹੈਡ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ that will be given by the third side of this triangle taken in the opposite order। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ A ਤੇ B ਔਰ they are placed in such a way कि पहले दी जेडी टेल है और दूसरे दी जेडी टेल है they are coinciding। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ it will be given by the diagonal of the parallelogram formed by these two vectors। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਟਾਫਟ। So let us start with triangle law of vector addition। Now the definition states कि if two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order। Now this is a very important statement, taken in the same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order। Is the illustration I have given in the previous class also। Now try to understand again। Suppose this is a vector A and this is a vector B। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ and let us say ਕਿ they both are represented by the two sides of a triangle taken in the same order, like they are moving along the same order। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ that will be given by the third side of the triangle taken in the opposite order। Now this is what we understood as triangle law of vector addition। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ analytical treatment discuss करनी शुरू कर दें। Now this analytical treatment means we have to talk about the mathematical discussion of this triangle law। Now the law whatever has been stated ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ statement ਹੈ it will remain like this, but ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Now suppose this is vector A and this is vector B, right? अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿ when you want to apply this triangle law ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹੈਡ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਟੇਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ they are not along the same line, neither they are perpendicular to each other। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ what is that angle? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, डायरेक्शन ऑफ A ਨੂੰ एक्सटेंड कर दो like this, और A वाली ਜਿਹੜੀ डायरेक्शन है A ਦੀ with this direction this vector B is making a certain angle। let us say this angle is theta। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। what is theta? Theta is the angle between the direction of vector A and direction of vector B। So our objective in this discussion is to find out the resultant। मैं दोबारा तो एक गल रिपीट करना चाहूँगा, resultant जेड़ा है it will have two things, one is magnitude and second will be direction। So during that whole mathematical discussion ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ magnitude
कैलकुलेट करांगे रिजल्टेंट दा and then we'll be calculating the direction of the resultant, right? So say this is the resultant vector, say this is the resultant vector r vector, और r vector ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ से ਕੀ कैलकुलेट करना है बच्चों, मैग्नीट्यूड, फिर की कैलकुलेट करांगे डायरेक्शन। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू इज ਇਹ ਜਿਹੜੇ ट्रायंगल ਦੇ जो एक्सट्रीम एजेस ने ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ नॉमेनक्लेचर करनी शुरू कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। सो लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट एज O, this point as capital A, this point as B, right? Now from B ਤੁਸੀਂ perpendicular drop करना है on the vector OA which has been extended, on this vector OA line which has been extended. Say you drop a perpendicular at point C on the extension of OA, right? Okay, now since we need to find out the magnitude of this resultant, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ right angle triangle ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, OBC. So in right angle triangle OBC, this OB square, this will be equal to OC square plus BC square, right? अच्छा बच्चों, ये ਜਿਹੜਾ OC है ਤੁਸੀਂ ਇਸ OC ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ OA plus AC. So OC could be written as OA plus AC whole square plus BC square, right? Now let us consider this as equation number 1. देखो मैं दोबारा तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਆਂ what we are doing in this particular discussion. ਅਸੀਂ triangle of ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ that is for sure ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ A ਤੇ B ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਗਾ, ਬਟ ਉਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, that we need to find out, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ मैग्नीट्यूड ਨੂੰ कैलकुलेट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ we are going for this mathematical treatment, analytical treatment. Wherever you come across this word analytical, that means we are doing the things mathematically. Okay जी, तो ठीक है। Now you see कि ਅਸੀਂ OA plus AC ਦਾ whole square plus BC square ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ equal to OB square. Now what is this OB? OB is R. R means resultant. So this is R square. What is this OA? OA is say A, vector A. Now we are since only looking for the magnitude, so I'm not putting here vector, right? And then what is this AC? So answer is I don't know AC, right? Okay. What is this BC then? क्योंकि इथे BC की value भी substitute करनी है, so answer is I don't know BC also. So parallel मैं एक छोटी जी होर मैथमेटिकल डिस्कशन करता हाँ। नाउ यू कंसिडर दिस ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। देखो अगर बच्चों ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ट्राइंगल ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ AC, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ BC। ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ this is been represented by vector B, और आ जिहड़ा एंगल है this is the angle between direction of A vector and direction of B vector. That means कि इस triangle ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ vector B ਤੇ थीटा बारे information है prior। तो लभना की है AC लभना है ते BC लभना है। बहुत आसान है, देखो किस तरह triangle ABC ਦੇ ਵਿੱਚ AC upon AB। Now this is थीटा, थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होएगा, ये बेस होएगा और ये हाइपोटेनियस होएगा। सो दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो दिस विल बी cos of theta. So your AC will be equal to AB cos theta. And what is AB? AB is B. So AC will be equal to B cos theta. One thing I
ਅਸਿਊਮ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ BC ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ BC upon AB, ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? Yes, you are right. This is equal to sine of theta perpendicular upon hypotenuse, ਤਾਂ BC ਹੋ ਜਾਏगा AB sin theta, so that is equal to B sin of theta। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ AC ਤੇ BC ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਲ ਬੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਿੰਗ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਦੇਖੋ OA we were knowing A ਹੈ, AC ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ B cos theta, और इस सारे दा होल स्क्वायर कर देना है। नाउ टेल मी व्हाट इज BC? द आंसर इज BC इज B sin थीटा और उसका स्क्वायर कर देता। ठीक है, हुन ए वाली जिहड़ी इक्वेशन है इसनू असी एक्सपैंड कर देने आ। सो दिस विल बी इक्वल टू नाउ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos of थीटा प्लस ए वाली टर्म नू एज सच ही लिख देने हाँ B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तुसी की करना है ਇਹਦੇ ਚੋਂ B स्क्वायर कॉमन ले लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, you will be writing like this plus 2AB cos of theta। ठीक है बच्चों, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ what is this? This is equal to 1। सो जिहड़ा रिजल्टेंट दा स्क्वायर हो जाएगा रिजल्टेंट दे मैग्नीट्यूड दा स्क्वायर। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना एक वैक्टर जिहड़ा है उस च दो चीज़ां हुंदियां ने, वन इज मैग्नीट्यूड, सैकेंड इज डायरैक्शन। तो जदों असीं मैथेमैटिकल ट्रीटमेंट कर रहे हाँ, एनालिटिकल ट्रीटमेंट कर रहे हाँ, तो पहला वो जिहड़ा रिजल्टेंट वैक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लभांगे, फिर असीं डायरैक्शन लभांगे। सो दिस विल बी नाउ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos of theta, और अगर कल्ला R लिखांगे सो दिस विल बी रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos of theta, and this is a very important formula। देखो नाउ व्हाट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन टीचेस अस, इस अंदाजा है कि दो वेक्टर्स ने उन्हां दा रिजल्टेंट जिहड़ा है दैट विल बी गिवन बाय दिस थर्ड वेक्टर ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर टू देयर्स। और इस रिजल्टेंट वेक्टर दा जिहड़ा मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड नू असी इस तरीके दे नाल कैलकुलेट करांगे, पहले दा स्क्वायर, पहले वेक्टर दे मैग्नीट्यूड दा स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर दे मैग्नीट्यूड दा स्क्वायर प्लस 2 पहले वेक्टर दा मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर दा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हुन इस तो बाद अगली जिहड़ी चीज है, आई अर्लीयर टोल्ड यू कि जिहड़ा वेक्टर दा रिजल्टेंट है वो उदों तक पूरा नहीं होएगा अनलेस we also find out the direction because it has magnitude as well as direction। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਉਹ ਹੰਬਲ ਜਾਂ ਫੰਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਗੈਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਆਲਸੋ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਅਸਿਊਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ with the direction of A, it is say making certain angle and this angle is say beta। इस एंगल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਹਾਂ beta। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ A ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੀਟਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ A B ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾय ਦ ਟੈਂਜੈਂਟ। So direction is always given by a tangent, so we'll be finding out
tangent of beta. Okay, so tangent of beta ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆ triangle consider ਕਰੋ OBC. OBC. Now this tangent of beta, this will be equal to perpendicular upon base. So perpendicular कितना है जी? BC. और base कितना है? OC. Right? अच्छा, हुन तुसी इस OC ਨੂੰ you can also write as OA plus AC. ठीक है बच्चों. ओके, हुन ਅਸੀਂ फटाफट कुछ नहीं करना, बस सिर्फ वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनिया ने. नाउ टेल मी व्हाट इज BC. BC की है तो ये देखो इथे ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ बैठे हैं ना, BC is B sin theta. So we will substitute B sin theta. ओके, अच्छा एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਕਈਆਂ ਬੁక్స్ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ. नो इशू विद दैट, कोई चक्कर नहीं है. कोई टीचर पढ़ांदा कहेगा जी इत्थे वैक्टर लिखो, लिख दो, की फर्क पैंदा है, क्योंकि जदों असी डायरेक्शन करनी है तो इत्थे असी इस B दा मॉडुलस लेना है. चाहे असी मैग्नीट्यूड भी कर रहे सी रिजल्टेंट दा, तां भी वैक्टर A दा मॉडुलस लेना है. तो अगर मैं इत्थे A वैक्टर भी लिख दिया ना, तो तुसी याद रखना है कि असी सिर्फ A वैक्टर दे मैग्नीट्यूड दी गल कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो एंगल वर्कआउट करेगा ना. ओके, तो ठीक है जी. BC ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਤਾ ਤੁਹਾਨੇ? B ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ sin थीटा अपॉन OA ਕਿੰਨਾ ਹੈ? नाउ व्हाट इज दिस OA? सो OA इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर A, क्योंकि सिर्फ ਉਹਦੀ लेंथ लेनी है. और इसी तरह ਜਿਹੜਾ नेक्स्ट टर्म है AC, व्हाट इज AC? AC इज B cos थीटा. तो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ मॉडुलस ऑफ वेक्टर B cos of थीटा. ਆ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਫਾਰਮੂਲਾ to find out the direction of the resultant. और अगर कल्ला बीटा find out करना है, so this will be tan inverse modulus of vector B sin theta upon modulus of vector A plus modulus of vector B cos theta. Now you need not get worried कि सर what is this tan inverse. देखो ये tan inverse टेंजेंट ਦਾ इनवर्स ਹੁੰਦਾ ਹੈ, और जो भी ये वैल्यू आएगी ਉਹਦਾ टेंजेंट इनवर्स देखने ਦੇ ਲਈ you need to take the help of your this natural tangent tables. ਉਹ ਹਰ ਬੁੱਕ ਦੀ बैक साइड ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. अच्छा, उन्हें जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला तो बन गया, रिजल्टेंट दे मैग्नीट्यूड का भी बन गया, रिजल्टेंट की डायरेक्शन का भी बन गया. हुण इहनूं याद किवें करिए? तो ये तो बड़ा ईजी है फॉर्मूला, ये तो बड़ी आसानी दे नाल तुहानूं सारिआं नूं याद हो जाएगा कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है रूट पहले वैक्टर का स्क्वायर प्लस दूजे वैक्टर का स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा. बट ये दिक्कत करेगा पक्का 100% भी डायरेक्शन जिहड़ी है रिजल्टेंट दी वो किवें होएगी. सो दिस इज टेंजेंट बीटा that is equal to vector B sin theta upon vector A plus vector B दा मॉडुलस cos theta. राइट, चलो मैं थोड़ा जिहा तुहानूं हिंट देना, याद करवाउण दे लई एक ट्रिक दसदा. देखो बच्चों, टेंजेंट जिहड़ा है वो sin upon cos हुंदा है. ठीक है, तो जदों भी टेंजेंट ऑफ बीटा फाइंड आउट करना है, मतलब यू नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, तो सब तो पहला तुसीं साइन अपॉन कॉस इस तरह लिख लेना है. ठीक है जी. हुण तुसीं देखो इत्थे मैं तुहानूं दस्सिया कि जिहड़ा रिजल्टेंट है दिस इज मेकिंग एन एंगल बीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ए. ठीक है बच्चों, तो इत्थे असीं साइन लिखिया, इत्थे असीं कॉस लिखिया. हुण साइन ते कॉस दे नाल ओ वाला वैक्टर लिख लेना है जिस दे नाल रिजल्टेंट एंगल नहीं बना रहा. हुण रिजल्टेंट वैक्टर ए दे नाल एंगल बना रहा है, पर इत्थे असीं की लिखिया? वैक्टर बी. इत्थे असीं की लिखिया? वैक्टर बी. तो पहला तुसीं ओ वाला वैक्टर लिख देना है जिहदे नाल एंगल नहीं बन रहा, फिर उहदे नाल साइन ऑफ थीटा लिख देना है, डिनोमिनेटर च फिर वही वैक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा लिख देना है. ठीक है, और डिनोमिनेटर दे विच वैक्टर ए दा मैग्नीट्यूड जिहदे नाल ओ रिजल्टेंट एंगल बना रहा है वो तुसीं लिख देना है. हुण देखो बड़ा सिंपल है ही. सपोज मान लो मैं तुहानूं कहंदा कि जी दिस इज वैक्टर बी एंड दिस इज वैक्टर से दिस इज वैक्टर ए, और आ वाला जिहड़ा वैक्टर है दिस इज रिजल्टेंट. ठीक है जी. बी दे विच एंगल थीटा है,
और रिजल्टेंट जिहड़ा है बीटा एंगल बना रहा है वैक्टर बी दे नाल। ਹੁਣ देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पेगा, ठीक है। बट जो तुसी डायरेक्शन लिखोगे ना तो टेंजेंट ऑफ बीटा बोलो कि बराबर होएगा। तो सब तो पहला मैं इत्थे की लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बोलो ठीक है, समझ आई गल। हुण इस साइन ते कॉस दे नाल किहड़ा वैक्टर लिखना है, जिहड़ा रिजल्टेंट वैक्टर दे नाल एंगल नहीं बना रहा। तो रिजल्टेंट वैक्टर दे नाल एंगल कौन बना रहा है, वैक्टर बी बना रहा है। तो दैट मीनस ए नहीं बना रहा, तो इथे एंगल लिख देंगे, सॉरी वैक्टर लिख देंगे वैक्टर ए, और इथे भी की लिख देंगे वैक्टर ए। अच्छा वैक्टर वैक्टर मैं बोल रहा थोने समझना है वैक्टर का मॉडुलस लेना है, राइट। और इस किस नू ऐड करना है, वैक्टर बी दे मॉडुलस से, ठीक है। इसनू तुसी सोचियो अच्छी तरह, प्रैक्टिस करो। मैं थोनू एश्योर करदा कि एक बारी तुसी ये गल अपने ब्रेन च फ्रीज कर ली, तुहाडे लई न्यूमेरिकल्स नू सॉल्व करना बड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। ओके हुण फटाफट ये जिहड़े मतलब एनालिटिकल ट्रीटमेंट कीती है वैक्टर दी, इस स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। देखो दो चीज़ां ने, वैक्टर दा रिजल्टेंट निकले आया, सॉरी रिजल्टेंट वैक्टर दा मैग्नीट्यूड निकले आया, रिजल्टेंट वैक्टर दी डायरेक्शन निकले आई। हुण वो जिहड़ा रिजल्टेंट दा मैग्नीट्यूड है अपार्ट फ्रॉम मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वैक्टर्स, वो दोनों दे एंगल्स से भी डिपेंड करता है, भाई दोनों दी डायरेक्शंस कितना एंगल है। तो उस दे अकॉर्डिंगली जिहड़ा रिजल्टेंट दा मैग्नीट्यूड है ते डायरेक्शन है वो वेरी करेगा। देखो किस तरह, सपोज अगर दो वैक्टर ने वट एवर मैग्नीट्यूड इज देयर, ठीक है, अगर उन्होंने दोनों दे विच एंगल जिहड़ा है वो 0 डिग्री है, दैट मीन्स थीटा इज 0। तो आ जिहड़ा रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड की बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0। कॉस 0 बोलो कितना हुंदा है, कॉस 0 हुंदा 1। तो अगर कॉस 0 1 हुंदा है तो रिजल्टेंट बनेगा a प्लस बी वैक्टर दा होल स्क्वायर और उस दा स्क्वायर रूट, ठीक है जी, समझ आ गई। और इनू असी इस तरह भी लिखांगे आर वैक्टर इक्वल्स, मतलब देखो हुण मैं लिख रहा आर वैक्टर इक्वल ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, बट हुण इत्थे वैक्टर दा तां कोई कंसर्न ही नहीं ना है क्योंकि दोनों पैरेलल ने, तो सिंपली ए जमा बी कर दो, तो आंसर आ जाएगा आर, मतलब ये मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है जी। ए आर वैक्टर दा मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ले लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ले लेना है। हुण डायरेक्शन बोलो, तो टेंजेंट ऑफ बीटा किहदे बराबर होएगा, बी साइन ऑफ साइन 0 कितना हुंदा, बोलो फटाफट, साइन 0 इज 0 अपॉन वट एवर जो भी नीचे आएगा है ना, तो दैट विल बी 0। तो टेंजेंट ऑफ बीटा आ गया 0। दैट मीन्स कि आ वाला जिहड़ा रिजल्टेंट सीगा, इफ vector A and vector B they are parallel to each other, the resultant will be also along the direction of vector A and of course vector B भी is kissed, ठीक है। ओके सेकेंड केस देखो, अगर थीटा जिहड़ा है दैट इज 90 डिग्री, तो थीटा 90 है तो बोलो cos 90 किहदे बराबर होएगा, cos 90 will be equal to 0, यस। तो जिहड़ा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो होएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। और जिहड़ी डायरेक्शन होएगी टेंजेंट ऑफ बीटा दैट विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन 90 1 हुंदा है अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी cos 90 बोलो फटाफट कितना हुंदा है, यस 0। तो ये बन जाएगा वेक्टर बी दा मॉडुलस अपॉन वैक्टर ए दा मॉडुलस। वैल्यूज पता होन गया, फाइंड आउट कर लांगे भाई कितना एंगल आ रहा है, ठीक है जी। हुण थर्ड केस से आने, तो थर्ड केस है इफ थीटा इज 180 डिग्री, अगर थीटा जिहड़ा है दैट इज 180 डिग्री, तो बोलो हुण इस 180 नू जदों असीं इस फॉर्मूला च पुट करांगे तो cos 180 कितना होएगा -1, इथे माइनस आ जाएगा, तो ए बन जाएगा a minus b the whole square the square root, so this will be vector a the modulus minus vector b the modulus। ध्यान नाल देख लो, अगर मान लो गल समझ नहीं आई इस वीडियो नू दोबारा तो एक बारी फिर रिवाइंड करके देख ले, ठीक है। और फिर
हुण डायरेक्शन कढनी है, सो टेंजेंट ऑफ बीटा बोलो बच्चों किहदे बराबर होएगा sin 180। की तुसीं मैनूं दस सकदे हो sin 180 किहदे बराबर हुंदा है? सोचो सोचो सोचो। ठीक है जी, तो sin 180 इज ऑल्सो 0। तो इत्थे सारा दा सारा 0 आएगा, नीचे कुछ भी आए वटएवर वो 0 दे नाल डिवाइड करांगे तो आंसर 0 आएगा। तो टेंजेंट ऑफ बीटा विल बी अगेन 0। दैट मीन्स कि जिहड़ा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर बी, अगर ए इस डायरेक्शन च है, बी इस डायरेक्शन च है, तो रिजल्टेंट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर वेक्टर। ओ ए ते बी दे मॉडुलस नूं जदों वेक्टर ए ते वेक्टर बी दे मॉडुलस नूं जदों सबट्रैक्ट करांगे तो जो भी रिजल्टेंट आएगा उहदे अकॉर्डिंगली साइन दे अकॉर्डिंगली असीं इस चीज नूं वर्कआउट कर लांगे। ठीक है, तो ये हो गया जी तुहाडा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द एनालिटिकल ट्रीटमेंट। इसनों एक बार दोबारा तो फिर तुसी समझ लो। और हुण मैं इमीडिएटली अगली जिहड़ी डिस्कशन शुरू करन जा रहा, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं गारंटी दे नाल दावे दे नाल बोल सकदा कि अगर तुहानूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अच्छी तरह समझ आ गया तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो कुछ है ही नहीं, वो तो बस इसकी रेपिटिशन ही है। तो हुण असीं शुरू करन जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हुण इहदी जिहड़ी स्टेटमेंट है पहला असीं उहनूं समझ लैंदे हां। इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point। मतलब ये है साडे लिए दो वेक्टर्स ने, वेक्टर ए ते वेक्टर बी, और असी ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों वेक्टर्स दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, तां जिहड़ा इन्हां दा रिजल्टेंट है then their resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point। तो मतलब जिहड़ा दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इथों दी असीं एक डायगोनल बना देना है। तो ये वाला जिहड़ा डायगोनल है ये वेक्टर ए ते वेक्टर बी का रिजल्टेंट देगा। हुण इस वैक्टर दी इस लॉ दी डेफिनेशन नू समझन तो बाद अगला काम जिहड़ा असीं करना है, वी हैव टू गो फॉर दिस दैट एनालिटिकल ट्रीटमेंट। एनालिटिकल ट्रीटमेंट का मतलब हुंदा है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। सो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड नाउ। मैं तुहानूं थोड़ी देर पहला दस्सिया है कि इफ यू हैव अंडरस्टूड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ इज वेरी सिमिलर टू दैट। ओके, सो लेट अस सी। साडे लिए वेक्टर ए है और आ है वेक्टर बी। होने वाले जिहड़े दो वेक्टर्स ने दिल बी ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो सब तो पहला असीं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। वेक्टर ए दे पैरेलल एक होर सिमिलर वेक्टर ड्रॉ कर दिता, दैट इज ए वेक्टर, और इसी तरह वेक्टर बी दे पैरेलल भी एक सिमिलर वेक्टर ड्रॉ करता। हुणे जिहड़े दो वेक्टर सी वेक्टर ए ते बी, इन्हां दोनों दे विच जिहड़ा एंगल है बच्चों दैट इज थीटा। ठीक है, वेक्टर ए ते वेक्टर बी दे विच इस थीटा नूं तुसीं किवें पढ़ोगे? थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अच्छा, अगर असीं वेक्टर ए दी डायरेक्शन नूं एक्सटेंड कर दईए तां दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो आ वाला एंगल भी जिहड़ा है दैट विल बी ऑल्सो थीटा। फर्स्ट थिंग, हुण आ जिहड़ा रिजल्टेंट है डायगोनल, दिस डायगोनल विल बी गिविंग अस द रिजल्टेंट वेक्टर। तो हुण असीं दो काम करने ने, एक तो इसदा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करांगे, दूसरा इसदी डायरेक्शन नूं फाइंड आउट करांगे। तो काम वही करना है जो पहला किया होया है। सब तो पहला असीं की करना है, जो भी पैरेललोग्राम है इसका नामकरण कर दिने हाँ। तो आ वाले पॉइंट नूं असीं नाम देता ए, इस पॉइंट नूं नाम देता बी, इस पॉइंट नूं नाम देता सी और इस पॉइंट नूं नाम देता डी। पॉइंट सी तो असीं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करांगे ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सटेंडेड लाइन ए डी एट पॉइंट ई। ठीक है जी। अच्छा, इत्थे थोड़ा जा मैं इनू सेट करता, दिस इज वेक्टर बी,
राइट ओके। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ACE, ट्राइंगल ACE। पहला मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है ना, तो आर द मैग्नीट्यूड किवें निकलेगा, इस ट्राइंगल च पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो आर स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ਹੁਣ थोड़े ਜਿਹੇ शॉर्टकट्स भी मैं लिख सकदा, सो डोंट माइंड इट कि सर पहला AC स्क्वायर क्यों नहीं लिखा। तो AE ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ यू विल बी सिंपली राइटिंग AD प्लस DE होल स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अच्छा AD का ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है, AD ਦਾ मैग्नीट्यूड ਜਿਹੜਾ है दैट इज इक्वल टू A और DE बोलो किहदे बराबर है। नाउ दिस इज बेस, ये साने कढ़ना है, दिस इज हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज व्हाट cos थीटा। तो ये जिहड़ा DE है तुहाडा ये हो जाएगा B cos थीटा, ਇਹਦਾ स्क्वायर हो जाएगा। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ CE है दैट इज परपेंडिकुलर इन दिस ट्राइंगल और CE अपॉन DC ये बन जाएगा sin थीटा, तो CE हो जाएगा B sin थीटा। तो इत्थे ਅਸੀਂ लिख देना है B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आई होप यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन इन दिस। तो ਹੁਣ नेक्स्ट स्टेप च इसनों ਅਸੀਂ अगले स्टेप च इदां लिखना है R स्क्वायर इक्वल्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos of थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ B स्क्वायर कॉमन लेके you will be writing A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा is how much 1। तो उसनों ਹੁਣ दोबारा लिखण ਦੀ ਲੋੜ नहीं है, so you will be simply writing 2AB cos थीटा। ठीक है जी। ਹੁਣ ਕੱਲਾ R कैलकुलेट करना है, तो R ਦਾ मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos of थीटा। ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर दा मैग्नीट्यूड। तो देखो बच्चों हुण गल समझ आई, दो वेक्टर्स ने, दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है एडिशन च। तो चाहे तुसी ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो, चाहे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करो, जिहड़ा रिजल्टेंट दा मैग्नीट्यूड है ईदर वे इट विल बी सेम। हुण फटाफट असी डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर लेने आ। तो डायरेक्शन दे लई यू नो वी यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टेंजेंट ऑफ बीटा। उन्हें बीटा ही है, सो लेट अस अज्यूम कि जो रिजल्टेंट है इट इज मेकिंग एन एंगल बीटा विथ वेक्टर A। ठीक है। तो tan बीटा देखो किहदे बराबर होएगा। हुण ये ट्राइंगल ले लेनी है ACE। तो इस ट्राइंगल ACE दे विच tan बीटा जिहड़ा है दैट विल बी इक्वल टू CE अपॉन AE। AE ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ है AD प्लस DE। अच्छा दसो CE किहदे बराबर है, तो आंसर है CE इज इक्वल टू B साइन ऑफ थीटा अपॉन AD बच्चों बोलो किहदे बराबर है A दे और DE किहदे बराबर है B cos थीटा दे। हुण तुसी देखो ना मैं इत्थे कोई वेक्टर लिखण दी फॉर्मेलिटी कीती, ना मॉडुलस पाउण दी, मतलब हुण समझ आंदी है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो जिहड़ा डायरेक्शन है उस वेक्टर दी दैट कुड बी फाउंड बाय दिस फॉर्मूला B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos ऑफ थीटा। अच्छा अगर यही जिहड़ा रिजल्टेंट वेक्टर है, लेट अस सपोज मैं ये कहंदा कि ए एंगल बना रहा है अल्फा विद डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर, तो फिर उस केस च टेंजेंट ऑफ अल्फा किहदे बराबर हुंदा। तो आंसर है टेंजेंट ऑफ अल्फा हुंदा। देखो मैं थोड़ी देर पहला दस्सिया था भी पहला तो साइन अपॉन कॉस लिख दो, हुण साइन थीटा बड़ा कॉस थीटा लिखता। हुण इस दे नाल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखता जी, टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हुण साइन थीटा दे नाल ते कॉस थीटा दे नाल ओ वाला वेक्टर लिखना है जिहड़ा जिहदी डायरेक्शन असी रिजल्टेंट दे नाल कंसीडर नहीं कर रहे। तो रिजल्टेंट दा वेक्टर B दे नाल एंगल बना रहा ना अल्फा, तो किदे नाल नहीं बना रहा A दे नाल। तो इत्थे तुसी लिखोगे A, इत्थे भी लिखोगे A प्लस लिखोगे B। सो दिस इज योर फॉर्मूला। चाहो तो तुसी उहनूं ट्रिग्नोमेट्री नाल सॉल्व करके भी देख लो, इस पर्टिकुलर चीज नूं आंसर तुहाडा ही आएगा। तो आई होप तुहानूं ये समझ आ चुक्या है। अच्छा जिहड़े स्पेशल केसेस ने, स्पेशल केसेस विल बी सेम एज वी हैव डन इन केस ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
सो आई होप कि थोड़े जिहड़ा मैथमेटिक्स है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ते पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दा वो अच्छी तरह समझ लिया है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲॉज ਦੇ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। मैग्नीट्यूड का जिहड़ा फॉर्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। इथे जिहड़ा थीटा है ये दोनों वेक्टर्स दे विच एंगल है, और जिहड़ा रिजल्टेंट दी डायरेक्शन है उसनू कैलकुलेट करन दा फॉर्मूला है b वेक्टर sin थीटा अपॉन a वेक्टर प्लस b वेक्टर cos थीटा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ।